friends, I'm your maths faculty from QLS Academy and we were studying the topic pair of linear equations and two variables. We will continue learning the same in this session too and learn some new and interesting concepts. Let us start without any further delay. Have fun learning. In the previous session, we learned that if we have a pair of linear equations and two variables and we draw them on a graph, one of the three possibilities can happen. Number one was the two lines representing the equations will intersect at one point, which means they have a single unique solution. Number two, the two lines will not intersect, that is, they will be parallel, so they will have no common solution. And number three, the two lines will be coincident, that is, they will have infinitely many solutions. A pair of linear equations in two variables which has no solution is called an inconsistent pair of linear equations. And a pair of linear equations in two variables which has one solution is called a consistent pair of linear equations. अगर no solutions हैं तो inconsistent pair and अगर एक solution है unique solution है तो consistent pair. A pair of linear equations which are equivalent has infinitely many distinct common solutions. Such a pair is called a dependent pair of linear equations in two variables. Remember that a dependent pair of linear equations is always consistent because हमारे पास solutions तो हैं बहुत सारे, that is why it is consistent. अब इस सब को summarize करें तो what I am saying is the lines may intersect in a single point. In this case the pair of equations has a unique solution. So ये हो जाएगा consistent pair of equations. And when the lines may be parallel, in this case the equations have no solution. तो ये हो जाएगा inconsistent pair of equations. And third case, the lines may be coincident. In this case, the equations have infinitely many solutions and dependent consistent pair of equations होगा ये. Now we saw that हमारी जो pair है linear equations की, इसका standard format है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अब यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट हैं. अब इनकी जो रेशियोज होते हैं, इनके रेशियोज से भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. जैसे व्हेन वी हैव a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका ये मतलब होता है कि जो इन दोनों इक्वेशंस की लाइंस होंगी दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. ऐसे ही हमारे पास एक और केस है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी सारे रेशियोज इक्वल हैं. इस केस में लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी इनके पास इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस होंगे. ऐसे ही हमारा थर्ड केस है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. दिस इज द केस व्हेन द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज देयर विल बी नो सॉल्यूशन. नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व. फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा do the pair of linear equations lambda x plus y equal to lambda square and x plus lambda by equal to 1 have number 1 no solution, number 2 infinitely many solutions and number 3 a unique solution. So अभी हमने देखा जैसे कि कोएफिशिएंट्स के रेशियो से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट केस जब हमें फाइंड करना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा. So we just saw that if we have a pair of linear equations in two variables, then for the no solution condition to be satisfied, the ratio of coefficients and constants should be a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. So in this case हमारे पास a1 equal to lambda है, b1 equal to 1 है, c1 equal to lambda square है and a2 equal to 1 है, b2 equal to lambda है and c2 equal to 1 है. ये हमने दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स निकाले हैं. अब हम इनका रेशियो लिखते हैं. जैसा कि हमने देखा a1 अपॉन a2 के लिए लिखेंगे लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 के लिए लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के लिए लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर बाय 1. सो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, जो तो इससे हमें मिलेगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1. सो इससे हम ये कह सकते हैं लैम्डा 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है बिकॉज दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बट हमारी जो थर्ड कंडीशन है, यानी कि जो लैम्डा स्क्वायर बाय 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सो लैम्डा बाय 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 1, इसको अगर हमें सेटिस्फाई करवाना है तो लैम्डा इक्वल टू -1 होना चाहिए. एंड इन द सेम वे अगर हमें 1 बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 1 करवाना है, अगेन लैम्डा इक्वल टू -1 होना चाहिए. हेंस देयर विल बी नो सोल्यूशन एट लैम्डा इक्वल टू -1. अब हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है
इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के लिए लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए. सो वी नो इस केस में रेशियोज क्या होते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों रेशियोज सेम होने चाहिए. सो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे λ/1 इक्वल टू 1/λ इक्वल टू λ²/1. अब वापस से फर्स्ट कंडीशन देखिए, λ/1 इक्वल टू 1/λ. सो इससे हमें मिलता है λ² इक्वल टू 1. अगेन लैम्डा इक्वल टू 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है. अब ये 1 होगा कि -1 होगा ये हम आगे डिसाइड करते हैं. सो λ/1 इक्वल टू λ²/1, थर्ड कंडीशन से उसको कंपेयर करेंगे तो इससे हमें मिलेगा λ इक्वल टू 1. सेम वे 1/λ इक्वल टू λ²/1. अगेन इस केस में भी लैम्डा को 1 होना पड़ेगा. सो वी विल गेट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस व्हेन लैम्डा विल बी इक्वल टू 1. अब थर्ड केस था फॉर अ यूनिक सोल्यूशन. फॉर अ यूनिक सोल्यूशन रेशियोज का जो रिलेशन है वो ऐसा होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2. सो वील राइट λ/1 नॉट इक्वल टू 1/λ. तो यहाँ पर लैम्डा जो है वो 1 नहीं हो सकता और -1 भी नहीं हो सकता, वरना वो बराबर हो जाएंगे. एंड 0 भी नहीं हो सकता बिकॉज हमारा एक केस है 1/λ. यहाँ पर अगर 1/0 हो गया तो ये अनडिफाइंड केस हो जाएगा. सो इससे हमें क्या समझ में आया, 1, -1 एंड 0, ये तीन वैल्यूज को छोड़ के लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर लैम्डा इक्वल टू 2 रख दें हम तो हमारे पास क्या होगा 2/1 नॉट इक्वल टू 1/2 विच इज़ ट्रू. सेम केस अगर 3 रख दिया तो 3/1 नॉट इक्वल टू 1/3. सो बट अगर हम 1 और -1 रखते तो यहाँ पर भी हो जाता 1/1 इक्वल टू 1/1, दोनों साइड 1 हो जाता. और अगर -1 रखते तो -1/1 नॉट इक्वल टू 1/-1, ये भी फॉल्स केस हो जाता बिकॉज बोथ आर इक्वल. Now there are 3 algebraic ways other than the graphical method we learnt to find the solution of a pair of linear equations in 2 variables using the graphical method. हमारे पास 3 methods हैं. Using the algebraic method हमारे पास 3 methods हैं, substitution method, elimination method and the cross multiplication method. अब हम इन तीनों मेथड्स को एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल लेके समझेंगे. सो सबसे पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. लेट द पेयर बी 3x - 5y इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन 1 मान लेंगे हम, एंड x - y इक्वल टू -1 विल बी इक्वेशन 2. सो स्टेप 1 होती है सब्स्टिट्यूशन के केस में, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज x. सो हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी का भी यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ हम इक्वेशन 2 लेंगे. तो हमारी इक्वेशन 2 है x - y इक्वल टू -1. सो इससे हमें y क्या मिलता है, x + 1. सो y इज इक्वल टू x + 1. हमारी स्टेप 2 है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज इन टर्म्स ऑफ x इन दिस केस विच कैन बी सॉल्व्ड. सो अब हमने इक्वेशन 2 से y में कन्वर्ट किया, तो अब हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रखेंगे. ओके, सो 3x - 5y इक्वल टू -1 हमारी जो थी इक्वेशन 1 थी. अब यहाँ पे जब हम y की जगह पे x + 1 रखेंगे जैसा हमने डिराइव किया स्टेप 1 में, तो हमें सॉल्व करने पे x की वैल्यू मिलेगी -2. नाउ स्टेप 3, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y. आपने जिससे भी स्टार्ट किया, अगर आपने शुरू में y निकाला होगा तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और अगर आपने शुरू में x में कन्वर्ट की होगी इक्वेशन तो यहाँ आपको y की वैल्यू मिलेगी. तो आपको स्टेप 2 में जो भी वैल्यू मिली है उसको आप स्टेप 1 में जो इक्वेशन है उसमें रखिए. सो इससे हमें मिलेगा, जब हमने लिखा था y इज इक्वल टू x + 1, हमने स्टेप 1 में डिराइव किया था. सो यहाँ हम x की जगह -2 रखेंगे जो हमें स्टेप 2 में मिला x की वैल्यू. तो इससे हमें y की वैल्यू मिलेगी -2 + 1 दैट इज -1. नाउ स्टेप 4 इज, in step 2 if we obtain a true statement involving no variable, then the original pair of equations has infinitely many solutions. That is, variable cancel हो जाए but we get the same LHS and RHS. अब इसका हम एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं. आप प्रॉब्लम को साइड में रख दीजिए, अब हम एक नया एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस बात का क्या मतलब है. सो हमारी 2 इक्वेशंस होंगी, हम एक और पेयर ले रहे हैं, 2x + 3y इक्वल टू 9 एंड 4x + 6y इक्वल टू 18. ये हमारी इक्वेशंस 1 और 2 हैं. अब हमारी जो पहली इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू 9, इससे हम x निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 9 - 3y/2. अब इसे हम दूसरी वाली इक्वेशन 4x + 6y इक्वल टू 18 में रखेंगे, तो x की जगह 9 - 3y/2 रखने पे हमें मिलेगा एट लास्ट 18 इक्वल टू 18.
तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, 18 इक्वल टू 18, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इसका ये मतलब है that there will be infinitely many solutions as the statement is true and variable as you can see cancel हो चुका है। Now step 5 is if in step 2 we obtain a false statement that is LHS not equal to RHS and also variable is cancelled, then the original pair of equations has no solution, that is it is inconsistent। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0, ये दो इक्वेशंस हैं। Now again we express x in terms of y from equation 1 to get x equal to 4 minus 2y. Now we substitute this value of x in equation 2 to get 2 into 4 minus 2y plus 4y minus 12 equal to 0 as equation थी 2x plus 4y minus 12 equal to 0। तो इससे आपको लास्ट में मिलेगा -4 equal to 0 which is a false statement as -4 is not equal to 0। So as you can see यहाँ पे हमें कोई solution नहीं मिलेगा, जो लाइन्स रिप्रेजेंट करेंगे इन इक्वेशंस को वो पैरेलल होंगे, दैट इज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ओके, सो द नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन की स्टेप 1 है फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सूटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल इधर x और y न्यूमेरिकली इक्वल। सो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशंस हैं वो है 3x minus 5y equal to -1 and x minus y equal to -1, इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम इक्वेशन 2 लेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x minus 3y equal to -3। अब हमारी स्टेप 2 है ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। इफ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो टू स्टेप 3। सो यहाँ पे हम एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3x minus 5y plus 1 में से हम माइनस करेंगे 3x minus 3y plus 3, यानी जो इक्वेशन हमें स्टेप 1 में ऑब्टेन हुई थी। If in step 2 we obtain a true statement involving no variable, then the original pair of equations has infinitely many solutions. If in step 2 we obtain a false statement involving no variable, then the original pair of equations has no solution, that is it is inconsistent. Now step 3, solve the equation in one variable x or y so obtained to get its value। अब हमने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया था, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला y इक्वल टू -1। नाउ स्टेप 4 इज सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y इन ईदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। अब y को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम x माइनस वाई इक्वल टू -1 में y की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -2। So this is it for this session. We learned the following things in this session. A pair of linear equations which has no solution, that is lines are parallel, is called an inconsistent pair of linear equations. And the pair of linear equations in two variables which has one solution, that is the lines intersect at one point, is called a consistent pair of linear equations. And a pair of linear equations which are equivalent, that is the lines are coincident, has infinitely many distinct common solutions, and such a pair is called a dependent pair of linear equations in two variables. Also we saw that when we have two equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो हमारे पास तीन केसेस थे इनके कोएफिशिएंट से रिलेटेड। अगर नो सॉल्यूशन वाला केस है तो हमारे पास कंडीशन होगी a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। फॉर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमारे पास केस था a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, एंड वन यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास था a1 by a2 not equal to b1 by b2। Also we saw 2 out of the 3 algebraic methods to find solution of pair of equations। हमने दो तरीके देखे, substitution and elimination। So I hope you had fun learning. For any queries information you may visit the link following the video. Thank you.